taking a class. Somebody is calling me. Not, then I will explain it to you separately. So let's start the class. Average speed. Generally, the speed of vehicles such as car, buses, scooters, etc. is non-uniform. Non-uniforम का मतलब होता है कि ये यूनिफॉर्म नहीं है, यानी कि एक लय में नहीं है. They cover unequal distances in equal interval of time because of traffic and road condition. It is not convenient to study speed distance relationship for a body moving with non-uniform speed, so we take average speed. तो जनरली क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक मारुति 800 है और किसी के पास एसयूवी रेनॉल्ट एसयूवी. तो अब आपको अगर स्पीड पता करनी है तो आपको कई सारी कंडीशंस होनी चाहिए, जैसे कि रोड सही होना चाहिए, ड्राइवर एक ही होना चाहिए. तो इसीलिए हम लोग कभी भी स्पीड डिस्टेंस रिलेशनशिप फॉर अ मूविंग बॉडी विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड नहीं लेते हैं. वी टेक एन एवरेज. चलिए बोलते हैं ना कभी कभी कि आपकी स्कूटी कितना एवरेज देती है, आपकी गाड़ी कितना एवरेज देती है. वी आर गोइंग टू कैलकुलेट हाउ and why average speed is calculated. So the total distance traveled divided by total time gives the average speed. For example, if a car covers the distance of 100 kilometers in 3 hours and 150 kilometers in next 2 hours, its average speed can be calculated as follows. तो पेज नंबर 30 पे है, हम लोग एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं. एवरेज स्पीड आप किसी भी चीज, किसी भी ऑब्जेक्ट का एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं by using the formula total distance covered by total time taken. And total distance covered would be 100 plus 150 and total time taken would be 2 plus 3 equals to 250 divided by 5, which will. Yes, Divyansh. Divyansh, you want to say something? No, ma'am. You have raised your hand. That is why I'm asking. You have clicked on raise your hand button. Put it down. No, ma'am, no doubt. किलोमीटर पर आवर. नेक्स्ट, अब हम लोग एवरेज स्पीड निकालना सीख गए हैं. नाउ वी विल लर्न व्हाट इज वेलोसिटी. The speed of a body tells us how fast or how slow the body is moving, but it does not indicate the direction of motion of a body. If a car is moving at a speed of 50 km per hour, it tells us that the car travels at 50 km in 1 hour, but the direction is unknown. That is, the car may be moving towards east, west, or any other direction. But if the direction is mentioned along with the speed, it's called velocity. ऐसा मैं बोलूं कि I went from Bacheli to Jagdalpur with an average speed of 50 km per hour. ठीक है, तब आप मेरी वेलोसिटी निकाल कि मैंने आपको बताया कि किस तरफ जा रही हूँ, किस डायरेक्शन में जा रही हूँ. ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ इतना बोलूँ कि I traveled at a speed of or at an average speed of 50 km per hour. तो आप मेरी वेलोसिटी नहीं निकाल. So how to calculate the velocity? Velocity is equal to displacement by time taken. Two bodies moving with the same speed and in the same direction have a same velocity. Two bodies moving with the same speed and in different direction have different velocity. As velocity has both magnitude and direction, it is called vector quantity. Whereas speed is a scalar quantity and it possesses magnitude only. ठीक है, वेलोसिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, तो इसीलिए वेक्टर क्वांटिटी होती है. लेकिन स्पीड स्केलर क्वांटिटी है एज इट पोजेस ओनली मैग्नीट्यूड ओनली. ठीक, तो मैग्नीट्यूड का मतलब सबसे पहले हम लोग जानते हैं व्हाट इज मैग्नीट्यूड. एक सेकंड में कॉल आ रहा है.
मैग्नीट्यूड का मतलब, हाँ यहाँ पे क्या कर रहे थे, हम लोग बोल रहे थे व्हाट इज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है साइज, ठीक है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है क्वांटिटी, फर्स्ट क्वांटिटी और डिस्टेंस। क्वांटिटी का मतलब क्या है, क्वांटिटी यानी कि एक किलो बॉल घूम रही है, नहीं। क्वांटिटी का मतलब होता है कि जैसे कि एक बॉडी, क्या बॉडी का मास क्या है, दैट इज नोन एज मैग्नीट्यूड। तो वेलोसिटी के पास दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, लेकिन स्पीड के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए वो स्केलर क्वांटिटी है। The unit of velocity is same of speed. The SI unit of velocity is speed raised to the power -1. अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड क्या है, स्केलर। स्पीड किसी भी हालत में जीरो नहीं हो सकती। स्पीड पॉजिटिव नहीं हो सकती, सॉरी, स्पीड पॉजिटिव और जीरो हो सकती। स्पीड कैन बी ईदर जीरो और पॉजिटिव, लेकिन वेलोसिटी क्या हो सकती है, जीरो कैन नॉट होना चाहिए। स्पीड कैन नॉट बी ईदर जीरो और पॉजिटिव, ठीक। लेकिन वेलोसिटी जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकती है। वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। आई होप सबको क्लियर हो रहा है। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी ऑन व्हाट्सएप। Now velocity is said to be uniform if it covers equal displacement in equal interval of time. Practically, it is very different situation to obtain, but most of the time velocity is non-uniform or variable. Body is said to move with variable velocity when it covers unequal displacement in equal interval of time. It may be equal distance covered by direction, but directions of motion is not same. Figure 2.22 shows displacement graph of objects at rest of objects. Yes, Shrishti? Ma'am, when you are explaining, your voice is having a bit disturbance and is very low. Is everyone facing the same problem? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बोलना चाहिए ना। मैं आप लोग के क्या, मैं आपको डांटूंगी क्या? सृष्टि कैसे बोल दी? बोलना चाहिए ना मैम, योर वॉइस इज वेरी लो व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग। Moving with uniform velocity and objects moving with non-uniform velocity. Is my voice audible now clearly? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. देखिए अब हम लोग एग्जांपल देखते हैं। A train moving on a track moves with variable velocity. For example, a car is moving with speed of 72 km per hour. Then the speed of the car will be 72 into 5 by 18, which is equals to 20 meter per second. Just a second. Just a second. Just a second.
हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? मैम वेलोसिटी। वेलोसिटी। चलिए ठीक है, तो हम लोगों ने डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी देखा। स्पीड एंड वेलोसिटी है तो जस्ट अ सेकेंड यार, मेरे को ना बार बार बहुत कॉल आते हैं। जब भी मैं पढ़ाने बैठती हूँ तभी कोई ना कोई मेरे को कॉल करता है। मेरे को बहुत परेशानी होती है ऐसे में। हाँ, तो we were doing the figure 2.2 shows displacement of time graph of objects at rest, objects moving with uniform velocity and objects moving with a non-uniform velocity. For example, a train moving on a track moves with variable velocity. वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि कांस्टेंट नहीं है उसकी स्पीड। कभी वो 20 किलोमीटर पर आवर, कभी 14 किलोमीटर पर आवर। टर्न लेते वक्त ट्रेन की स्पीड कम होती है, स्ट्रेट चलते वक्त ट्रेन की स्पीड ज्यादा होती है। तो वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब यही होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ कार मूविंग विद स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर। आवर को अगर हम लोग फिर ऊपर ले जाएंगे तो वो इनवर्स हो जाता है, दैट इज वाई किलोमीटर आवर टू द पावर -1। Then speed of the car SI unit is equal to 72 into 5 by 18, which is equals to 20 meter per second. अब ये 5 by 18 कहाँ से आया? टू कन्वर्ट मीटर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर, वी मल्टीप्लाई बाय 18 by 5। दिस इज कांस्टेंट। अगर आपको किसी भी चीज को यानी मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो दैट मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 18 by 5। लेकिन यहाँ पे हम लोग उल्टा कर रहे हैं, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कर रहे हैं, इसीलिए इनवर्स हो गया 5 by 18। इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। जिस तरह से टाइप्स ऑफ मतलब हम लोगों ने स्पीड देखा, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, वैसे ही टाइप्स ऑफ वेलोसिटी भी देखेंगे। When a body covers equal displacement in equal interval, it is said to be moving with uniform velocity. Practically, it is difficult to achieve it under normal condition. A rocket moving in free space can be the best example for it. तो ऐसी कोई भी चीज, जैसे कभी कभी फिजिक्स में क्या होता है, जैसे कोई भी चीज आपको ये बोली जाएगी कि स्पीड इक्वल्स टू 0, लेकिन स्पीड कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये सिर्फ स्पेस में ही ऐसा हो सकता है कि किसी भी चीज की स्पीड 0 हो लेकिन तब भी वो डिस्टेंस कवर कर रहा हो। ठीक है, तो देर आर वेरियस सिनारियोज विच आर गोइंग टू कम अप इन फिजिक्स विच आर प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, बट या पेपर में आप उसको दिखा सकते हैं। तो दिस इज uniform velocity is also such kind of scenarios where you cannot achieve such a state. So then we have variable velocity when a body covers unequal displacement in equal interval of time, जो कि possible है practically. It is said to be moving with variable velocity or non-uniform velocity. For example, the train moving towards north after starting from a station. Figure 2.24 देख सकते हैं आप। जैसे कि A से B गए, B से C गए, C से D गए। तो A से B में 4 मीटर, B से C में 7 मीटर and C से D में 2 मीटर। Next we have average velocity. तो average velocity हमने एवरेज स्पीड निकाली, अब हम लोग एवरेज वेलोसिटी भी निकालते हैं। व्हेन वेलोसिटी इज वेरिएबल, एवरेज वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. तो एवरेज वेलोसिटी, Yes, ma'am. ओके, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी को हम लोग VAV से डिनोट करते हैं। AV स्मॉल हो जाता है एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय S। दिस फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट, प्लीज पुट अ स्टार मार्क ऑन इट, या आप लोग जो भी बोल्ड वगैरह कर सकते हैं कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ अ बॉडी कवर्स 100 meters in 20 seconds and next 50 meters in 30 seconds, then एवरेज वेलोसिटी इसकी क्या आएगी? टोटल डिस्प्लेसमेंट बता रहे हैं तो 100 है एंड 50 which is equals to 150 and total time taken that will be 20 plus 30 seconds which is equal to
150 divided by 50, that is 3 meter per second. अभी तक क्लियर है? कुछ भी ऐसा या और एग्जाम्पल चाहिए? मैं आप लोगों को आज या कल में, मोस्ट प्रोबेबली आज में एक बुकलेट दूंगी या फिर एक 4-5 क्वेश्चंस का एक और दूंगी जो अभी तक हमने पढ़ा है, यानी एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट बेस पे 10 न्यूमेरिकल्स रहेंगे, 10 न्यूमेरिकल्स। ठीक, तो वो 10 न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करिए। देखिए फिजिक्स में थ्योरी ज्यादा नहीं होती, फिजिक्स में न्यूमेरिकल ज्यादा होते हैं। मैं कोशिश करूंगी आप लोगों को और न्यूमेरिकल्स देने की, ताकि आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो। थ्योरी तो आप लोग कभी भी पढ़ सकते हैं, न्यूमेरिकल्स मेरी क्लास में इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में भी मैं 50% यू कैन से 60% न्यूमेरिकल्स ही दूंगी, रेस्ट आपका थ्योरी रहेगा। तो आप लोग को उसी हिसाब से पढ़ना है। न्यूमेरिकल्स आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ठीक? Yes, ma'am. While ma'am. I will try to give you. Yes, Srishti. Ma'am, while solving the numericals, if we are facing any problem while solving, so can we ask you? Yes, beta, I am here for that only ना। नो हेजिटेशन। आप लोगों को किसी को भी कोई हेजिटेशन करने की जरूरत नहीं है कि मैम क्या सोचेगी, मैम को मैं कितने, आप मेरे को 10 बार भी पूछेंगे तो मैं आपको 10 बार भी बताऊंगी। और देखिए मैंने आपको पहले भी बोला है कि अटेम्प्ट करना ज्यादा जरूरी है। मैंने आपको डाटा, किसी को भी डाटा नहीं कि मेरे को गलत आंसर क्यों मिला। अटेम्प्ट करना ज्यादा जरूरी है, उसी से आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है? आप जहाँ गलती करेंगे मैं आपको हेल्प करूंगी। तो देर इज नो इशू इन सच कि आप लोग मैडम क्या सोचेगी, मैडम से पूछ लेता हूँ, लेकिन सबसे पहले आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है? अटेम्प्ट करेंगे तभी आपको आएगा आइडिया, और नेक्स्ट क्लास में फिर मैं उसके आंसर्स आपसे डिस्कस कर लूंगी, ठीक है? क्लियर? सृष्टि, कोई हिचक नहीं करना है किसी को भी कि मैम क्या सोचेगी, मैम ऐसा है, मैम हेल्प कर देगी। बिल्कुल मैं यहाँ आपकी हेल्प के लिए ही हूँ, ठीक है? सभी को बोल रही हूँ मैं, ऐसा नहीं कि किसी एक इंडिविजुअल को बोल रही हूँ, मैं सभी को यही बोल रही हूँ कि बट फर्स्ट यू हैव टू अटेम्प्ट इट ऑन योर ओन। आपको खुद ही से अटेम्प्ट करना है एक बार। मैं ये नहीं बताऊंगी कि आंसर इसका ये है वो है, आपको खुद अटेम्प्ट करना है। मैं नेक्स्ट डे या फिर नेक्स्ट क्लास जो भी होगी, I will make sure that I will discuss the answers first. Understood? और Yes, अगर मैं ma'am. भूल जाऊं तो, you can remind me कि मैम आपने ये वाला आंसर डिस्कस नहीं किया है, ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ। तो okay, let's do one more topic for today and then we can end the class. Acceleration. ठीक है? It is a common phenomena that moving bodies do not have uniform velocity. For example, a car moving in road cannot move with a uniform velocity due to traffic signals, bad conditions of the road, speed breakers, etc. The velocity of car may change in magnitude or acceleration or direction or both. Hence, we can say that car is having an accelerated motion. इसको अंडरलाइन कर लीजिए। Thus, the rate of change of velocity with time is called acceleration. वो फॉर्मूला को भी अंडरलाइन कर लीजिए। Acceleration equals to change in velocity by time taken for the change. A is equals to v minus u by t, where v is your initial velocity, u is your initial velocity, v represents final velocity, and t is the time taken for the change. Please underline this formula as well as definition. ये आपके वन वर्ड में आ सकता है कि डिफाइन एक्सेलरेशन एंड गिव एक्सेलरेशन फॉर्मूला, ऐसे करके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम्स एज वेल एज यूनिट टेस्ट में।
यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, अब हमने एक्सेलरेशन फाउंड कर लिया और अब हम लोग इसका यूनिट निकाल लेंगे. यूनिट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, यू हैव टू रिमेम्बर ईच एंड एवरीथिंग. स्पीड का यूनिट क्या है, वेलोसिटी का यूनिट क्या है, एवरीथिंग इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक ओनली. So the SI unit of acceleration is meter per second square. Sorry, meter per second, हाँ square. तो मीटर सेकेंड -2 इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो ये -2 हो जाएगा. जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन मीटर सेकेंड इनवर्स 1 बाय s. तो हम लोगों ने उसको ऊपर ले गया तो दैट विल बिकम एज मीटर सेकेंड टू द पावर -2. The other commonly used unit is CGS, unit of acceleration, that is centimeter second to the power -2. अब हम लोग बता सकते हैं एक्सेलरेशन का ऑपोजिट होता है डिसेलरेशन और रिटार्डेशन. तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है और वो धीरे हो रहा है, दैट इज नोन एज डिसेलरेशन. बोलते हैं ना हम लोग एक्सेलरेट मारो, एक्सेलरेट मारो गाड़ी में बोलते हैं. तो एक्सेलरेट मारो इसका मतलब ये होता है कि हम लोग गाड़ी की स्पीड बढ़ा रहे हैं, लेकिन धीरे करो, यानी दैट इज नोन एज डिसेलरेशन. क्लियर है सभी को? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब जिस तरह से यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, यूनिफॉर्म स्पीड होता है, वैसे करके यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी होता है. A body is said to be moving with a uniform acceleration if the rate of change of velocity with time is constant. Suppose a car is moving with a velocity of u meter per second. U क्या है? Initial velocity. It begins with to accelerate at the rate of a meter per second to the power -2. The velocity will now increase by numerical value of a. Thus, increase in velocity in time t will therefore be equal to at. Hence, the final velocity of time is given by formula v equals to u plus at. जिसमें से v क्या है हमारा फाइनल वेलोसिटी, u है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, a is acceleration and t is time. This formula is very important. Note it down. This is an equation of uniformly accelerated motion. Please note it down. Ab, if there is a change in velocity is constant in the same interval of time, the acceleration is said to be uniform. Otherwise, अगर change constant नहीं है in the same interval of time, then it is called variable or non-uniform acceleration. ठीक, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ जैसे कि एग्जांपल दिया है, फ्रीली फॉलिंग body from a roof is an example of uniform acceleration, whereas the motion of vehicle on a busy road is an example of variable or non-uniform acceleration. अब देखिए, अब यहाँ पर 3 इक्वेशन है हमारे पास, हमारे पास इससे 3 इक्वेशन आ गए. v equals to u plus at, s equals to ut plus half at square. Now v square equals to u square plus 2as. ठीक है, ये सारे 3 यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के इक्वेशन हैं. आप लोग इसको अंडरलाइन कर लीजिए या बॉक्स बना लीजिए IMP बोल के. ठीक, क्लियर है? सिमिलरली अगर एक्सिलरेशन हो रहा है और अगर मान लो डिसेलरेशन हो रहा है, तो आपको वही फॉर्मूला लगाना है, लेकिन rather than using plus you can use minus. ठीक, Yes, ma'am. so the last topic will be mass and weight. ठीक, so we will discuss in next class. मोस्ट प्रोबेबली तब नेट शायद इशू ना हो तो फिर आपको मैं लाइव क्लास ले लूंगी, नहीं तो अगर मेरे को नेट का इशू हो रहा है तो मैं आपको वीडियो सेंड कर दूंगी. ठीक है, Okay, ma'am. इतना हो गया है. इसी की बेसिस पे मैं शुरू से बेसिस पे
आपको 10 न्यूमेरिकल्स दूंगी, मोस्ट प्रोबेबली मैं शाम तक आप लोगों को ग्रुप में डाल दूंगी। यू हैव टू कंप्लीट इट बिफोर द नेक्स्ट क्लास। मैं बार बार बोल रही हूँ, मेरी क्लास में थ्योरी मैं 60% आपके पेपर में न्यूमेरिकल दूंगी, तो डोंट बिलीव कि आप लोग थ्योरी याद कर करके पास हो जाएंगे फिजिक्स में। यू हैव टू फोकस ऑन न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल में आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगी, ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी उठा के दे दूंगी, आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी। तो ऑल द असाइनमेंट्स दैट आई एम गिविंग आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट विल डिसाइड योर 10 मार्क्स इन माई क्लास। ठीक, प्रोजेक्ट्स के जो मार्क होते हैं वो उसी से डिसाइड होंगे। आप रेगुलरली अपना असाइनमेंट मुझे भेजते रहिए। आई एम नोटिंग डाउन ईच एंड एवरी वन हु इज अटेम्प्टिंग और हु इज नॉट अटेम्प्टिंग। मेरे को सही आंसर नहीं चाहिए, मेरे को अटेम्प्ट करने वाले चाहिए, ठीक है। और जब भी आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो प्लीज ये कुछ फॉलो होते हैं। गिवन लिखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, देन फॉर्मूला यूज्ड, देन आप अपना न्यूमेरिकल करिए, मैथमेटिकल करिए। ये सारी चीजें होनी चाहिए आपके क्वेश्चन में, आपके आंसर में। क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. क्वेश्चन में दिया है गिवन, गिवन क्या दिया है क्वेश्चन में आपको, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आप, वो प्लस फिर आपका न्यूमेरिकल जो भी आप जिस भी मेथड से कर रहे हैं। बिना इसकी आपका आंसर करेक्ट नहीं होगा। एग्जाम में भी यही स्ट्रेटजी रहेगी मेरी। इफ यू हैव गिवन ऑल दीज 3 स्टेप्स देन ओनली कंसिडर फुल मार्क्स। इसके बाद मैं किसी का भी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं सुनूंगी कि मैडम मेरा आंसर सही था, मैडम आपने मेरे को नंबर क्यों नहीं दिया। तो दीज आर द 3 स्टेप्स दैट यू आर गोइंग टू यूज व्हाइल सॉल्विंग एनी न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल आर वेरी इंपॉर्टेंट इन माय क्लास। 60% विल कम इन योर एग्जाम, रेस्ट विल बी थ्योरी। तो ये मत समझिएगा कि मैं थ्योरी पढ़ के पास हो जाऊंगी या सिर्फ न्यूमेरिकल पढ़ के पास हो जाऊंगी। यू हैव टू गेट एटलीस्ट मिनिमम, अगर 100 का पेपर है, अगर 50 का पेपर है तो सभी को 45 अप मिलना ही चाहिए। इट इज वेरी इजी। ठीक, Yes, ma'am. Yes, ma'am. okay, Yes, ma'am. Yes. so you can watch this video Yes, ma'am. again in the YouTube channel. So that will be all for today. Okay, thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye. Bye, ma'am. Thank you, ma'am.